Good morning, student. Myself, Dr. K.K. Jain from SIRT College, Bhopal. Today, we will discuss about the consistency of the simultaneous equation. तो यहाँ पर हमको कुछ simultaneous equations मिलेगी। हमको ये बताना है कि ये simultaneous equation कंसिस्टेंसी है या फिर इनकंसिस्टेंसी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक मैट्रिक्स इक्वेशन हम बनाएंगे। एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमको बनाना होगा और मैट्रिक्स इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? देखिए, मैट्रिक्स इक्वेशन is in the form of Ax equal to B. So this matrix equation is find out the given equation. These are from the coefficient of x, y and z. So here we write the coefficient of x, y and z from each equation to 5, 3, 14, 5, 3, 14. Second one here is 0x. So 0, 1, 2, 1, minus 1, 2 and 2, 1, 6. And in right hand side 4, 1, 0, 2. 4, 1, 0, 2. So x, y, z is matrix. This is X matrix and right hand side is matrix B. These two matrix are column matrix and matrix A is 4 by 3 order matrix. Right? तो यार जो simultaneous equation given था उससे हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट किया है. नाउ वी फाइंड augmented equation. Augmented equation is in the form of AB. So 5, 3, 14, 0, 1, 2, 1, minus 1, 2, 2, 1, 6 and matrix B 4, 1, 0, 2. This is an augmented matrix. So for find the consistency of equation, first we convert this augmented matrix in echelon form, right? तो in echelon form में convert करने के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे. एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने पढ़ा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन R1, R2, R3 इस टाइप से. तो यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या करेंगे, पहले एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो फॉर मेकिंग एशेलॉन फॉर्म फर्स्ट वी इंटरचेंज द रो R1 एंड R3. R1 in place of R1 write R3. 1 minus 1 2 0. R2 as it is, and in place of R3 write R1 5 3 14 and 4. In R4 2 1 6 and 2. Right? Now using elementary operation, ठीक है. बी फाइंड द जीरो ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ डायगोनल. डायगोनल के लेफ्ट पार्ट को हमको टोटली जीरो बनाना है. तो जीरो इस टाइप से हमको ऑपरेशन यूज करना है कि डायगोनल का लेफ्ट पार्ट जीरो हो. ओके, सो फर्स्ट वी यूज ऑपरेशन R3 minus 5 R1 and R4 minus 2 R1. तो here R1 and R2 are unchanged. 1 minus 1 2 0. R1 and R2 0 1 2 1. Now R3 minus 5 R1 मतलब
row number 1 is multiplied by 5 then subtracted from row number 3. तो R1 5 बन जा 5, 5 minus 5 equal to 0. 5 बन जा 5, 3 minus 5 8. 5 to the 10, 14 minus 10 equal to 4. And 5 0 the 0, 4 minus 0 equal to 4. Similarly, row number 1 multiplied by 2 and subtracted from row number 4. So 2 1 is 2, 2 minus 2 equal to 0. 2 1 is 2, 1 minus 2, 1 minus 2 equal to 3. 2 2 is 4, 6 minus 4, 2 and 2 0 is 0, 2 minus 0 equal to 2. Okay, now next R3 minus 8 R2 and R4 minus 3 R2. Here R1 and R2 no change. R1 R2 no change. 8 बन जाए 8 minus 8 0, 2 8 is 16, 4 minus 16 minus 12, 8 बन जाए 4 minus 8 minus 4, and here 3 1 is 3, 3 minus 3 0, 3 2 is 6, 2 minus 6 minus 4, and 3 1 is 3, 2 minus 3 minus 1. Here we see that 1 2 3 4 5 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, राइट. अब एक ये वाला एलिमेंट को हमको 0 बनाना है. अगर ये भी 0 बन जाएगा तो इसका मतलब एशेलॉन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा. तो फॉर इट वी इंटरचेंज रो नंबर 3 टू रो नंबर 4. रो नंबर 1 1 minus 1 2 and 0 0 1 2 0. Row number 4 in place of row number 3, and 0 0 minus 12 and minus 4. Now by using another operation R4 minus 3 R3. So 1 minus 1 2 0 0 1 2 0 0 0 minus 4 minus 1, and last 0 0. 4 3 is 12, 12 minus 12 0. 3 1 is 3, 4 minus 4 plus 3 minus 1. This is the echelon form. Clear? So which is echelon form. अब हम बताएंगे मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म का यूज करके कंसिस्टेंट जो इक्वेशंस है हमारे पास में दे आर कंसिस्टेंट और नॉट, राइट. तो फर्स्ट वी सी द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी. तो फर्स्ट वी राइट हियर कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी. So we see the rank of matrix AB and rank of matrix A, right. So if the rank of matrix AB and rank of matrix A, therefore which is the condition for consistency, and if rank of matrix AB is not equal to rank of matrix A, which is the condition for inconsistency. तो दोनों ही केस हमने यहाँ पर लिखा है. फर्स्ट केस ये जो हमारे पास में फर्स्ट केस, इस केस में अगर ये वाला केस बनता है तो जो इक्वेशन है दे आर कंसिस्टेंट, एंड सेकंड केस बनता है तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, राइट. सो वी सी द रैंक of matrix AB. Rank of matrix AB. AB, this is a whole matrix. In this matrix we see what every
रो आर नॉन जीरो, कोई भी रो इसमें जीरो नहीं है, कोई भी पूरा रो जीरो नहीं है, ठीक है। ऑल 4 रोज आर नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 4, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू 4। नाउ वी फाइंड मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो व्हाट इज रैंक ऑफ व्हाट इज मैट्रिक्स ए, दिस 4/3 मैट्रिक्स इज ए। तो मैट्रिक्स ए इज 1 -1 2 0 1 2 0 0 -4 and 0 0 0। दिस इज अ मैट्रिक्स ए। अब यहां लिखते हैं हम पहले सिंस मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -1 2 0 1 2 0 0 -4 and 0 0 0। दिस इज 4/3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज 4/3। लेकिन हमको मालूम है, हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, रैंक फाइंड किया है कैसे, कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम लेंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हमको फाइंड करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रैंक हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी लिखा था, दिस इज 4/4 मैट्रिक्स, तो इसका रैंक हमने 4 लिखा है। लेकिन ए मैट्रिक्स जो हमने लिखा है दिस इज 4/3 मैट्रिक्स, तो 4/3 मैट्रिक्स मतलब 4/3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमको इसका रैंक बताना है, तो इस मैट्रिक्स का हम केवल 3/3 स्क्वायर वाला पार्ट हम वेरीफाई करेंगे। तो स्क्वायर वाला पार्ट लास्ट वाला रो जो इसमें है, इसको हम यहाँ पे छोड़ के बाकी 3 रो को हम चेक करेंगे। 1 -1 2 0 1 2 0 0 -4, ठीक है। तो दिस इज रिमेनिंग 3/3 मैट्रिक्स। तो इन दिस 3/3 मैट्रिक्स all 3 rows are non-zero, all 3 rows are non-zero, therefore rank of matrix A equal to 3, ठीक है। so rank of matrix AB is not equal to rank of matrix A, therefore the above condition, if rank of matrix AB is not equal to rank of matrix A, therefore the given equations are consistent, ठीक है, right। so therefore the given equations are inconsistent। so in this question we verify the consistency, ठीक है। तो इस इक्वेशंस को हमको कंसिस्टेंसी वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन बनाया, मैट्रिक्स इक्वेशन से फिर हमने एक ऑगमेंटेड इक्वेशन बनाया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद हमने क्या किया, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। इफ ये एशेलॉन फॉर्म बना, इसके बाद हमने क्या किया, मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स ए का रैंक कंपेयर किया। अगर दोनों का रैंक इक्वल आ जाता तो हम लिख देते कि कंसिस्टेंसी, लेकिन यहाँ पर हमको दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल नहीं मिला, देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।